वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद। फिट फॉर लाइफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम और आप मिलकर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो हमारी बॉडी को टोन अप करने में मदद करेंगे और साथ ही ये हमारी डेली वर्कआउट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इन एक्सरसाइजेस की मदद से ना सिर्फ आप अपनी बॉडी को शेप में रख सकते हैं बल्कि साथ ही फिट फॉर लाइफ रह सकते हैं। वैसे फिट फॉर लाइफ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है संतुलित जीवन यानी बैलेंस। अगर देखा जाए तो बैलेंस नाम की चीज़ हमारी ज़िंदगी से आज बिल्कुल गायब हो चुकी है। पर घबराने की क्या बात है, हमारा प्रोग्राम बना ही इसलिए है कि आपकी सभी परेशानियों को शेयर कर सके। वैसे हम आपको शुरू से ही बताते आए हैं कि किसी भी फिटनेस प्लान को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। अपने आप कोई भी काम मत कीजिए। वैसे हम ये बात सिर्फ सावधानी के तौर पर कह रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की शक्ति और बेसिक मेटाबॉलिक रेट एक दूसरे से अलग होता है। हम बस सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सभी प्रिकॉशंस को सही तरह से मानें और इंजर्ड होने से बचें। तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज आप और हम मिलकर करेंगे एक ऐसी एक्सरसाइज जो ना सिर्फ आप रोज कर सकते हैं बल्कि ये आपकी बॉडी के हर हिस्से को टोन अप करेगी और आप दिखेंगे सबसे स्मार्ट। तो चलिए चलते हैं अपने एरोबिक इंस्ट्रक्टर के पास और उनसे जानते हैं ये एक्सरसाइजेस। आप उनसे खूब सारी बातें कीजिए, बाद में आप और मैं मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। So let's start now. Alright, I'm Manisha. With me is Gagan and Suparna. Let's take a step out right leg. Normal arms taking forward and back. Take a double step out right now. You're warming up. And back. Keep going. That's right leg. Keep smiling. Grapevine here. Grapevine, no jumping. You're just warming up. Grape, 2, 3. That's your step cross, step down. And 5 and 6. Touch out. Right leg. Touch. Well done. Right and left. Alright, take single hand. Right and left. Right. Left. 5, 6. Take a double here, step touch. Step touch. Left leg. Normal hand. Still warming up. Double. And double. Alright, grip. Grip. And grip. Give me a clap. Step cross, step and clap. Keep going. 5 and 6. Give me heel tap forward with your left going first and right, left and right. How are you doing, guys? They think it's very hot. Left and right. It's never too hot to exercise. Give me double each leg, double here, double. Oh, really? Actually, when you're doing it indoors, it's never too hot. Alright. And 5 and 6. You hold it right leg here. वार्म अप। एरोबिक्स शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार किया जाए और इसका सबसे बढ़िया उपाय है वार्म अप। Stretching your hamstring here. Pushing your butt out, back is flat. Hold it for 4 and 3 and 2. Push same leg, heel tap forward. 2. Holding left leg now. And pressing down. Are you feeling the stretch, guys? Feeling it right here on your hamstring. Hold it there. Press it down. And tap. 5, 6. Touch out, side, side, side. And left. And right. Keep going. 4 more. 4. And 3. After last 2, you're going to hold it. 5, 6, 7. Taking your hand up. Alright, your knee is over your ankle here. And stretching all the way. You're stretching the inner thigh here and the side over here. Just shifting your weight. Getting it to this side. Stretch it here. Nice stretch. Hold it there. And nice side to side. Nice. United punch down. Good move. Keep going. Punch, punch, punch.
4 more, 4. And 3. Last 2. Or let's add a tap to it, tap to it. Tap, tap. Take your hands up. And tap. Keep going. 4 more, 4. And 3. Last 2. March it. Take a deep breath here. लेग प्रेशर। अपने पैरों को एड़ी के बल पर आगे पीछे लाएं, फिर अपनी थाइस पर दोनों हाथों से प्रेशर डालें। इस क्रिया को आप बार बार दोहरा सकते हैं। And exhale. Breathing through your nose. Exhale. Deep, deep breath. Exhale. All right, give me grapevine with a jump now. Grapevine, shoot it. Relax your arms. Keep going. Grip. And grip. Can we do one grip, one mambo? Yeah? Mambo here. Mambo here. We add a twist to the mambo. Add a twist to the mambo. Again, grip. Twist it. And back. Alright, hold the mambo here. Hold the mambo twist here. And mambo twist. Okay, we're going for a right leg clock. Ready? 5, 6 now. 2, 3 holding mambo. Clock it once again. Now. Push. 2, 3 holding mambo. Alright, give me a V, normal V. Normal. You're still on your right leg. Keep going. Right. Wide V you're making, bringing your feet together. Normal bicep arms. Alright, give me a power V. 4 power V's. That's 4. 3, 2. Holding knee up, knee up, knee up. Let's see. Knee up. ट्विस्ट। शरीर को एक लय में आगे पीछे करना या फिर यूं कहें कि थिरकना ही ट्विस्ट होता है। ध्यान रखिए, इसमें शरीर के सारे अंग सक्रिय रहें। Right. So knee ups, if we repeat them, say 3 times, we call it a normal repeater. If you do it 4 times, we call it a 4-part repeater. So we'll do a 4-part repeater on the left leg. Everyone ready? Alright, 4-part here. 1, 2, 3. Hold a step touch. How's that? Alright. Take it from the top. Let's see how much you remember. 5, 6. Are you enjoying it? Grip it. Twist it. Grip. Clock, clock, clock. Power V. Repeater. Hold the right leg. Are we doing? Alright. So from the top, right and left. Are we ready? So what are we doing? Grapevine mambo, grapevine clock, power V repeater. Ready? 5, grip it now. Twist it. Clock it. Power V. And repeat left. Grip it here, grip it. Twist it. Grip it back. Clock it. Power V. And back. Repeat. Hold it here. Okay, now. Are we comfortable with this? Guys, are we comfortable with this? Right, today. Now we are trying a variation. Grip it. Clock it. Power V. Okay, variation. Turn. Hold a step, touch your left leg. बेसिक पोजीशन। ये बिल्कुल सही पोजीशन है जिसमें हम अधिकतर एक्सरसाइजेस करते हैं। सीधे खड़े हों, सीधा देखें, कंधे और पैर सही पोजीशन में हों। आप एरोबिक गतिविधि से भी अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसकी शुरुआत कुछ मिनट की चहलकदमी से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे गति को बढ़ाते रहिए। Alright, now the same thing we did. We're going to do it left leg. Alright, are we ready? After 4, that's 4. And 3, left leg grapevine. Twist mambo. Clock. What are we doing? Power. And face the
Come front again. Right, hold it here. How's that? Okay. Okay, doing right and left without a break, turning it this time. Ready? 5, 6, break, wind down. That's it. What's coming up? And what are we doing? Turning. Left leg, grip it. Well done. That's the way. Clock, clock. And push. I'm having fun. Except the heat. Okay. Last time. Let's go. I know. Let's go. Once more. Power V. And here. Okay, now without power. Without power, we're cooling down. No power. No power. Normal V. You beat your facing. Front. Alright, holding step tight. So cooling down. हैंड मूवमेंट। हाथों का संचालन भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। इस क्रिया में विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि आप हवा में हाथों को सक्रिय रखें और पैरों को भी उसी लय में गतिशील रखें। Okay, little cool down before that. Take the shoulders up. Change it to a tap. Shoulders up. Relaxing, normal breathing. Take them back. And forward. Next side. No full circle. Just side to side. And side. Alright, take a deep breath. And exhale. And forward. In a very funny manner, as they stand with the weight on one leg, with one leg turned completely sideways. That's what you don't want to do. And some people stand with the weight on their heels, feeling all the gravity there, or on the inner or outer edges of your feet. That is also wrong. You can actually make out the improper posture by noticing where the soles and the heels of the shoes wear out. If they wear out like that, that means probably you're standing, with the weight on one side. So the right method is to distribute your weight evenly on your toes and your heels and standing straight. And same things, if you don't distribute the weight evenly, your stomach falls and your chest droops, your shoulders droop, and all kinds of deformities. So, relax guys, both of them are punished. Alright, so the deformities you develop are basically spinal deformities, and with the lower back, with the hunching shoulders, and you get all kinds of problems here. So I hope you paid attention to the guidelines I gave, that your feet are together, stomach is in, buttocks are tight, chest is out, neck is straight, hand by your side. Well, not always, but basically that's it. So those are the guidelines, and now we just stretch a little, just warm up a little, cool down. Here, rotating your ankle, and other way around, take it back, stretch, and relax. Same thing with the other foot. Rotating your ankle clockwise, anti-clockwise, and stretch. Alright, take a deep breath. Keep in mind the guidelines we gave you. So until next time, have a nice day. Bye-bye for now. तो आपने देखा कि वार्म अप्स
कूल डाउन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एरोबिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वार्म अप और कूल डाउन करने से शरीर दोबारा फॉर्म में आ जाता है। अगर आप बगैर वार्म अप किए डायरेक्ट टफ एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। वैसे भी हर चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे ही करनी चाहिए। ग्रेजुअली आप टफ एक्सरसाइजेस की तरफ भी जाइए और एक बढ़िया वर्कआउट का फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा तो हमें योग से भी होता है और योग से हमारा संबंध पिछले कुछ एपिसोड से जुड़ गया है। जी हाँ, याद आया होगा आपको, योग का अर्थ ही है जुड़ना। और जुड़ना भी कैसा? तन से, मन से। तन को स्वस्थ रखने के लिए हम करते हैं आसन और मन को स्वस्थ रखने के लिए हम करते हैं ध्यान धारणा। ध्यान धारणा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना घर बार छोड़कर योग करें, बल्कि आप अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी ध्यान धारण कर सकते हैं। खैर, वो योगा की एडवांस स्टेज है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अपनी गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं अपने आसन की तरफ। योग में भी आप विभिन्न अंगों के आसन करके अपने लिए एक अच्छा खासा वर्कआउट तैयार कर सकते हैं और अपने तन को सुडौल रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने योगा एक्सपर्ट के पास और उनसे जानते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। तैयार हैं आप? नमस्कार, स्वागत। हम सभी योगासन के संबंध में थोड़ा बहुत जानते हैं कि योगासन क्या है, लेकिन उसको कैसे करें। आज हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। आज हम कुछ ऐसे योगाभ्यास, प्राणायाम, मुद्रा करेंगे कि जिनको हम कर स्वस्थ दिनचर्या प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। सुबह से उठ के शाम तक की जो दिनचर्या है उसमें यदि हम कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए कुछ योगाभ्यास को अपने जीवन में समाविष्ट कर लेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। तो आइए कुछ ऐसे योगासन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कटी संचालन। अपने पूरे शरीर को निरोगी रखने के लिए, पूरी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए करेंगे कटी संचालन। उसमें दोनों हाथ पैरों को आधे फुट के करीब खोलें, दोनों हाथ कटी के ऊपर, और कमर को धीरे धीरे गोल घुमाएं, बिल्कुल धीरे धीरे गोल। जितना कमर गोल घुमाएंगे, जितने लचीला बनेगी, जितना आप कमर गोल घुमाएंगे उतने आप निरोगी रहेंगे। कमर गोल घुमाइए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में नृत्य को समाविष्ट किया गया। नृत्य प्रसन्नता का प्रतीक है। यदि आप कमर को गोल घुमाएंगे तो प्रसन्न रहेंगे। कमर गोल घुमाइए, धीरे धीरे कमर गोल, पूरी तरह। अब इसी को विपरीत दिशा में पूरी तरह, पूरी विपरीत दिशा में घुमाइए। पहले अपने क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, अब साइड वाइज, ये पूरी तरह। आप पूरी कमर साइड वाइज बेंडिंग होनी चाहिए, साइड वाइज बेंडिंग, ये पूरी तरह, ये पूरी तरह देख लीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे, बिना झटके के साथ, आराम से, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ करें। इसका नाम है कटी संचालन। जितनी आपकी कमर फ्लेक्सिबल रहेगी, रीढ़ की हड्डी लचीली रहेगी, उतना जीवन में आनंद रहेगा। अब फ्रंट बैक, आगे पीछे। पहले आपने गोल घुमाई, फिर विपरीत दिशा में घुमाया उसको, फिर साइड वाइज, और फिर फ्रंट बैक। इसका नाम है कटी संचालन। इसको करें 1 मिनट से आधे मिनट तक, इसको अवश्य करें। ज्यादा भी कर सकते हैं इसको। सांस की स्थिति साधारण, पैर अपनी जगह स्थिर रहेंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, और कमर को धीरे धीरे गोल घुमाएं, बिल्कुल धीरे धीरे गोल। जितना कमर गोल घुमाएंगे, जितने लचीला बनेगी, जितना आप कमर गोल घुमाएंगे उतने आप निरोगी रहेंगे। आइए अब करते हैं इंजन दौड़। यदि आप इसको 5 मिनट कर लें तो 5 किलोमीटर जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, भागेंगे, उससे ज़्यादा लाभ आपके शरीर को प्राप्त हो जाएगा। करने का तरीका समझ लें, बिल्कुल जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करेंगे, तभी आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। इसमें आपकी सांस की आवाज़, पैरों की आवाज़ और पूरे हाथ चलने चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से।
जितना देर कर सकते हैं, 5 मिनट जरूर करें, 5 मिनट कर सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो वो इसको कम से कम करेंगे, जिनको हार्ट की तकलीफ हो वो इसको कम करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति, साधारण व्यक्ति इसको 5 मिनट तक कर सकता है। यदि आप आधा मिनट करेंगे, 1 मिनट करेंगे, तब भी आपके शरीर को पूरा इसका लाभ प्राप्त होगा। इसका नाम है इंजन दौड़, और पूरे हाथ चलने चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से। एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है योग के अंतर्गत, इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका काम है, इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। इसके लिए नासाग्र मुद्रा बनाई जाएगी। इस प्रकार से दोनों हाथों को रखें, ये, और एक नाक के इधर, एक नाक के इधर। आपको सांस लेना आरंभ करेंगे, किसी भी एक नाक को बंद करें और धीरे धीरे सांस खींचें। सांस खींचने के बाद तत्काल उस नाक को बंद करें और दूसरी नाक को खोल दें और सांस निकालना आरंभ कर दें। अब जिससे सांस निकाला है, इससे दोबारा इनहेल करिए अंदर, धीरे धीरे। तत्काल बंद करें इसको और दूसरी से निकाल दें। सांस जो ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इतना धीरे होना चाहिए, यदि आपकी हथेली पे आटा भी रखा हो तो उड़ ना सके। कि आप धीरे धीरे सांस लें, लिया मैंने सांस, बिना रोके हुए तत्काल इससे निकालना शुरू कर दिया। यानी इधर से लिया और तत्काल इधर से निकालना शुरू कर दिया। अब जिससे निकाला है उससे दोबारा अंदर लिया और इधर से निकाल दिया। आपको कहीं भी कुंभक नहीं करना, इसके अंदर कहीं भी सांस को रोकना, ना बाहर ना अंदर। इसको 100 बार यदि रोज करें आप, तो आपका शरीर 3 महीने में पूर्णतः स्वच्छ हो जाएगा। आपकी नाड़ियां शरीर में 72 योग के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां मानी गई। यदि आप इसको 3 महीने तक लगातार 100 बार रोज करें, तो बिना किसी आपके आर्टरी में 2 ही किस्म की ब्लॉकेज हो सकती है, या तो कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम, दोनों तरह की ब्लॉकेज को ये प्राणायाम बिल्कुल दूर कर देगा। इसको 100 बार रोज करें। 100 बार से घबराने की आवश्यकता नहीं, इसको इंटरवल्स डाल के कर लें। यदि आप सो के उठते खुले हुए जाएं, वहां कर लें 5-10 बार, एक बार। यानी इधर से लिया धीरे धीरे और इधर से निकाल दिया, जिससे निकाला इसे धीरे धीरे अंदर लिया और इससे निकाल दें। उसके बाद नहाने से पहले इसको 10 बार कर लें, नहाने के बाद 10 बार कर लें। आधा मिनट लगेगा मुश्किल से। यानी उसके बाद खाना खाने से पहले कर लें, दोपहर के खाना खाने से पहले कर लें, शाम के खाना खाने से पहले कर लें और रात की, यानी 5-6 बार अलग अलग इंटरवल करके 100 बार रोज कर लें। आपको आश्चर्य होगा, हम लोगों को बिल्कुल किसी भी किस्म की ब्लॉकेज आपकी आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर जो भी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस प्राणायाम के द्वारा। इसका नाम ही नाड़ी शोधन। नाड़ियों को जो शुद्ध करते हैं वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम एक और बहुत जबरदस्त आसन, मुद्राओं के बाद हमने आसन किए, अब हमने प्राणायाम किया, और अब हम साधारण लिविंग में जो जिन आसनों को यूज कर सकते हैं उसमें एक मुद्रा भी करें। मुद्राएं तत्व योग के अंतर्गत आती हैं। यानी एक आज की तारीख में बर्निंग प्रॉब्लम है हार्ट की। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक, छोटी उम्र में हार्ट अटैक की तकलीफ हो जाती है, किस प्रकार ठीक करें उसको? तो योग के अंतर्गत, तत्व योग के अंतर्गत एक आने वाली एक बहुत ही जबरदस्त मुद्रा है, उसको मृत संजीवनी मुद्रा माना जाता है। यदि हार्ट के पेशेंट उस मुद्रा को करें तो 3 सेकंड के अंदर, इमरजेंसी के केस में, उस मुद्रा के द्वारा आपको फर्स्ट एड मिल सकती है। इस मुद्रा को करने के लिए आप हाथ को यहाँ बनाएं, ये पहली उंगली को अंगूठे के बेस में लगाने के बाद उसको अंगूठे से प्रेस कर दें और सामने से ये दोनों मध्यमा और अनामिका को अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिला दें। ये बनी मृत संजीवनी मुद्रा। हार्ट के केस में, इमरजेंसी में, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उस वक्त 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड ये मुद्रा आपको प्रदान कर देगी। इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम मृत संजीवनी मुद्रा। शास्त्रोक्त इसका वास्तविक नाम जो है अपान वायु मुद्रा है, लेकिन इसके वर्क को देखते हुए इसको मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। मृत संजीवनी मुद्रा हार्ट के केस में 3 सेकंड में फर्स्ट। इसका पूरा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल नहीं, कैसे काम करती है। इसको यहाँ लगाइए। साधारण स्थिति में जिनको हार्ट की तकलीफ नहीं है वो भी इसको करके अपने हृदय को ताकतवर बना सकते हैं। बेस में लगाने के बाद
उसको अंगूठे से प्रेस कर दें और सामने से ये आज आपने कुछ योगासन भी सीखे, प्राणायाम भी सीखा और मुद्रा भी सीखी। यदि आप इन समस्त चीज़ों को अपने जीवन में, दैनिक दिनचर्या में कुछ अपना स्थान देंगे तो इसके द्वारा आपके स्वास्थ्य में अद्भुत प्रकार का लाभ प्राप्त हो पाएगा। जो लोग निरोगी हैं वो सदा निरोगी रह पाएंगे, जो अस्वस्थ हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। आप करें और देखें और इसका लाभ प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बात अगर संपूर्ण आरोग्य लाभ की है तो हेल्दी टिप्स को जानना बेहद ज़रूरी है। न सिर्फ जानना बल्कि इन्हें अपनाना भी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं त्वचा को निखारने के कुछ उपायों की। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच नींबू का रस और 4 बादाम पीसकर मिलाएं। ये एक ब्लीच है, इसे चेहरे पर लगाएं, 20 मिनट बाद धो दें। दही के पानी में रुई भिगोकर त्वचा पर लगाने से त्वचा साफ हो जाती है। अब कुछ और टिप्स हो जाएं। गुलाब की पत्तियों को पानी में डालकर उबाल लें। ठंडा होने पर छानकर बोतल में भर के फ्रिज में रख लें। ये आपका नेचुरल रोज वाटर तैयार है। पुदीने की पत्तियों को पानी में उबालकर ठंडा करके पीने से पेट के विकार दूर हो जाते हैं। आज की हेल्दी टिप्स बस इतनी ही। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते कुछ बातों को ध्यान में रखिए। अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, हेल्दी वर्कआउट्स, इन सब बातों को फॉलो करके आप बना सकते हैं अपनी जिंदगी को खुशहाल और स्वस्थ। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि हमेशा आपसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।